ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम वाशिंगटन डीसी ने 1989 और 90 में कश्मीरी हिंदुओं के कत्लेआम के मामले पर एक खुसूसी इज्तिमा का इनेकाद किया। इस दौरान कश्मीर में 89 और 90 के मुतादिद मुतासिरीन ने गवाही दी और सबूत जमा कराए। कमीशन कत्लेआम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतासरीन और बच जाने वालों के वक़ार को यकीनी बनाने और इन घिनौनी कार्रवाइयों के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए खड़ा है। कमीशन के बयान के मुताबिक वो मुतासरीन को इंसाफ देने और मुकम्मल बाज़ाबातकारी की दरख्वास्त करता है। इंसाफ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। ICHRRF हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से मुतालबा करता है कि वो कश्मीरी हिंदुओं पर 89 और 90 में हुए मजालिम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करें। कमीशन दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों, बैन अक़वामी इदारों और हुकूमतों से ताकीद करता है कि वो भी इन मजालिम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करें। दुनिया को इन दिल दहला देने वाली कहानियों को सुनना चाहिए। इस हवाले से माजी की खामोशी और बेअमली के असरात का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए और मुनासिब तरीके से इसे नस्ल कुशी तस्लीम किया जाए। My friend from a schoolmate, his name is Ashwani Garyali from Chhattabal. Ashwani Garyali was studying for chartered accountancy, and he stayed back there and he was preparing for his exams, and in private he was doing tuitions. And 5 terrorists showed up at his home and dragged him out, pumping bullets in his abdomen and his head. And in Sora Medical Institute, by the time he reached there, he passed away. If the authorities could have helped him, he probably would have been saved. Help Kashmiri Hindus go back to their homes respectfully, without fear, on their own terms. Ms. Raina, 1 minute left. Thank you. We don't need your pity, but togetherness to help us get justice after 32 long years. This is your time to support us. Support truth, support humanity. We have waited a long time. My fight for justice, Neelkan Ganju, and many others who fell victims to the brutal atrocities continues. Kashmiri Pandit organizations, Panam Kashmir, Global Kashmiri Pandit Diaspora, Roots in Kashmir, Kashmiri Samiti, Jammu Kashmir Vichar Manch and All India Kashmiri Samaj should be, in fact, involved in any kind of a political dialogue, not just on Kashmiri Pandits, but on the fate of Kashmir as well. The Indian Ministry of Culture and the Archaeological Survey of India immediately should order restoration of more than 450 temples, Hindu shrines that have been desecrated in the Kashmir Valley in the last 32 to 35 years. We will continue this fight for justice until Yasin Malik and Bitta Karate are convicted, until the government of India recognizes that the genocide had happened. The Islamic jihadis tortured my father with cigarette burns, slit his throat, shot him with bullets, and they did not stop there. The height of the barbaric act was such that they cut his body in pieces and left in gunny bag on the Dr. Ali Jan Road near Sabra Medical Institute, Srinagar, Kashmir. Due to the situation in Kashmir, when everyone was trying to leave, my dad stayed back. He told us before we left Kashmir, nothing will happen to me. They are my friends. We never got to perform his last rites. The patrolling team who recovered the body had cremated him. मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शद्दुमत से जारी है। पुंछ की तरफ से अभी तक 41 किलोमीटर तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। बाकी 3 किलोमीटर हिस्से से अप्रैल के पहले हफ्ते तक बर्फ हटाई जाएगी। इसके बाद जिला इंतजामिया सड़क का मुआयना करेगी। बाद में शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोलने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बर्फ हटाने के काम की निगरानी PWD के मैकेनिकल विंग पुंछ के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अफसर कमल ज्योति शर्मा कर रहे हैं। शर्मा का कहना है कि रवा बरस 11 मार्च से ये काम शुरू किया गया था। मुगल रोड का काम हमने 11 मार्च को स्टार्ट किया था, तो लगातार काम चल रहा है और कल तक हम पहुंच गए थे, वही 41 किलोमीटर के करीब पहुंच गए थे और कोई नहीं, वो 2.5-3 किलोमीटर हमारा काम रह गया। बाकी उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में हम पीर की गली पहुंच जाएंगे। तो गाड़ियाँ भी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसला लेगी, ट्रैफिक वाले देखेंगे रोड कैसी है, क्या है, कोहरा बहुत उधर लगता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया वही फैसला लेगा क्या करना है।
वहीं जिला शोपियां में लोगों ने मुगल रोड पर बर्फ हटाने के कामों को तेज करने की अपील की है। लोगों ने जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया से कहा है कि वो शोपियां, राजौरी और पुंछ अजला का राब्ता जल्द से जल्द बहाल करें। लोगों का कहना है कि जोजिला पास और दीगर सड़कों से बर्फ हटाई जा चुकी है, लेकिन मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अमल बहुत सुस्त रवि से हो रहा है। सुस्त और रफ्तारी से काम चल रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसी से अपील करते हैं कि जो सीज़न आने वाला है, हमारे जो मतलब हमारा ट्रेड है, हमारे लोग यहाँ आने जाने में बहुत दुश्वारी महसूस करते हैं, उनके लिए ये जल्दी खोल दिया जाए ताकि यहाँ के लोग जो है वो अपना ट्रेड बढ़ाए और अपना रोज़गार भी कमाए। वहीं दूसरी जानिब बीकेपुरा बडगाम के जिंदगी बाग इलाके के लोगों ने पामपुर के निहामा रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से रोड वसी होने की बरक से तंग हो रही है। इन्होंने कहा कि इनके इलाके के एक खानदान ने मैकडेमाइज्ड रोड पर कब्जा करके अपनी मिल्कियत में शामिल किया। इन्होंने कहा कि इंतजामिया से लगातार अपील के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। SHO नौगाम और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। इन्होंने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। एक्स्ट्रा रखे थे, 24 फुट बराबर रखे थे हमने। तो यहाँ एक हमारा एक भाई है, रात के टाइम हाँ इसने ब्लॉक डाला है मैकडम के ऊपर, कब्जा किया जा रहा है। यहाँ से पुलवामा से गाड़ी आ रही है, यहाँ दूसरी गाड़ी का साइड नहीं मिल रहा है। आज 12 बजे रोजाव यमो खबर मिक्सर होना क्या होना रोत किस रही वनकस वुचान सुबह निद्र वो 15 फुट रोड, इसलिए सोच मुनासिब कर रोड बंद योतान मसल गल हल तोतान त्रा रोड यल मैं नहीं सोया हूँ। मैंने कल पुलिस को इंफॉर्मेशन दी अकॉर्डिंगली कि ये काम कर रहा है, फिर उसने पुलिस ने रोक लिया उनको, उन्होंने काम रुकाया। रात गए क्या पता है 8-9 बजे 10 बजे उन्होंने फिर काम, सुबह जब देखते हैं तो ये देखा है कि उन्होंने रात को ये लगाया है, क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक विदाउट परमिशन। पटन के बूदीबुग में माज़ामा बारामुल्ला रेलवे ट्रैक पर बूदीबुग और काउंटरबुग के लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। ये एहतजाजी बूदीबुग में नाला फिरोजपुरा पर फुट ब्रिज तामीर करने का रेलवे हुकाम और इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं। बूदीबुग में रेलवे ट्रैक के 173वें पोस्ट के करीब नाला फिरोजपुरा पर फुट ब्रिज न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुल न होने की वजह से वो काउंटरबुग में कायम अस्पताल भी नहीं जा सकते हैं। इन अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। धरने की वजह से माज़ामा बारामुल्ला ट्रेन सर्विस कुछ देर के लिए मुतासिर रही। मागाम पुलिस और रेलवे पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को खत्म किया गया। हल्के का लोग आज से बिल्कुल रेलवे ट्रैक अगर कोई आदमी चलते इस पे उसको खतरा बन सकता है। आज से पावर पे मतलब ट्रेन चलते आज से, इसीलिए हमने आज फिर प्रोटेस्ट किया था। बनने से पहले, ये ब्रिज बनने से पहले थोड़ा जिससे हम ट्रांसपास हो सके, और ये नाला इतना गहरा भी नहीं था उस दिन, ताकि हम इजीली ट्रांसपास कर सकते थे। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन बन गई है, अब वहाँ से ट्रांसपासिंग मुश्किल हो रही है कि यहाँ पे जो पुलिस भी है वो बोलते कि यहाँ से आप नहीं ट्रांसपास कर सकते। हॉस्पिटल गोड़ खड़ा काश्मीर मज सरकारी स्कूल आम तौर पर 95% गोड से रिलेशन कम कि हस्पताल तो बे स्कूल मूजूबन तम कन फुट ब्रिज कि यहाँ तक भी सन प्रॉब्लम गसे सॉल्व। त्राल के कोहलेन इलाके में लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश है। लोगों का कहना है कि साल 2016 में यहाँ तिब्बी मरकज के लिए नई इमारत तामीर की गई थी। इसका काम भी लगभग मुकम्मल हो गया, ताहम अभी तक इसको मुताल्लिका महकमे को हैंडओवर नहीं किया गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक पुरानी इमारत में कायम है, जहाँ जगह की कमी की वजह से अमले और मरीजों को मुश्किलात दरपेश हैं। काम है ये जल्द अज जल्द पाई तकमील तक पहुँचानी चाहिए। यहाँ का जो इलाका है बहुत ज़्यादा गरीब तबके से यहाँ के लोग रहते हैं, तो क्या होता है कि इनको ज़्यादा दूर जाना पड़ता है अपने गांव से होकर। अगर यहाँ पे ये सहूलियात दस्तियाब होती तो लोग ज़्यादा उनको दूर नहीं जाना पड़ता। गवर्नमेंटस कर अपील ये फेंसिंग लगे जल्दी और यह चालू जल्दी, ताकि सोन इलाका गरीब, ये गुजर तसान और ये गरीब बसान, ये मामूली दौद बन त्राल हस्पताल। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि सिंपल कोई प्रोसीजर होगा, डेंटल प्रोसीजर, एक्सरे प्रोसीजर या कोई लैब टेस्ट होगा, हमको रेफर करना पड़ता है या SGH त्राल या किसी और हॉस्पिटल में। जब यहाँ से स्टोर हो जाएगा, लैब की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, डेंटल की भी, एक्सरे भी, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा स्पेशली गरीब लोगों को।